شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ تمام خدمت کرنے والے بھائی بہن اور انٹرنیشنل کلیسیا کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں آپ سب کی خدمت میں، جتنے ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، وہ ہے کامیاب خادم بننے کا طریقہ۔ کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ اب کامیابی جو ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک کامیابی ہے کہ لوگوں کا ہجوم لگ جائے، اور دوسری کامیابی ہے کہ کوئی مل جائے جس میں آپ کا میسج، آپ کا کلام، آپ کا پیغام بویا جائے اور وہ پھر بڑھتا جائے، اگتا جائے۔ اور ایک کامیابی یہ ہے کہ لوگ آپ کی نقل کرنا شروع کر دیں۔ بھلے آپ کے پیچھے ہجوم ہے، بھلے آپ کی وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ فالو کر رہے ہیں یا نہیں، وہ آپ کے نقل کرنے لگ جائے۔ نقل بعض دفعہ پسند کی جاتی ہے اور بعض دفعہ وہ پروموٹ کی جاتی ہے۔ غور سے سنیں، توجہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دھیان کریں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس طرح کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، کس طرح کے خادم بننا چاہتے ہیں، کس طرح سے آپ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ یاد اس شخص کی رہتی ہے جو کچھ اچھا کرتا ہے۔ بے شک غالب نے ایک بات کہی ہے، اور وہ کہتا ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بے شک نام ہوتا ہے، برے لوگوں کا بھی نام ہوتا ہے، اچھے لوگوں کا بھی نام ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پائیداری، وہ نام کتنی دیر تک چلتا ہے۔ وہ نام 100 سال، 200 سال، 300 سال، یا اس نام سے آگے کتنی شاخیں نکلتی ہیں، لوگ اس نام کو لے لیتے ہیں۔ سکھوں کا ایک خاص عمل ہے ان کے مذہب میں، اور اسے کہتے ہیں کہ نام لینا، یعنی کہ میں کسی کا ہو چکا ہوں، میں نے اس کا نام لے لیا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے، یعنی کہ تم میرا نام لے لو۔ نام ٹیپر کارڈ کی طرح نہیں، یا نام گرداننے سے نہیں کہ بول دو تو بس ٹھیک ہے۔ نام لینا، پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ جو نام لیا گیا ہے اب وہی دکھائی دے۔ اسی عکس بندی کو، اسی چیز کو، اسی پیٹرن کو، اسی نمونے کو انطاکیہ میں لوگوں نے دیکھا کہ جو یسوع کے فالوور ہیں، جو مسیح کے ماننے والے ہیں، وہ بالکل مسیح کی طرز کی زندگی گزارتے ہیں۔
मसीह का स्वभाव है इनके अंदर, मसीही रवैया है। ये किसी के साथ धोखा नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, ये बदनजरी नहीं करते, ये किसी पर बोझ नहीं बनते, ये किसी के साथ वादा खिलाफी नहीं करते। जो कह देते हैं वो पूरा करते हैं, और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका जवाब होता है, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। तो लोगों ने जब ये चीजें देखी, जो रूह के फल हैं, 9 हैं रूह के फल, जो मुबारकबादियां हैं, 9 हैं मुबारकबादियां। मैं इसको कहता हूं मुबारक मिनिस्ट्री। ये मुबारक खिदमत मसीह ने की है, बाप को बयान किया है। मकाशवा में जाएं तो वहां पर भी मुबारक हैं वो जो अब खुदावंद में मरते हैं। मुबारक हैं, मुबारक हैं, मुबारक हैं जो जिन अल्फाज पर बेस है मसीह की खिदमत की, जमीनी बादशाहत की, 3.5 साल के अरूज की, नशेबो फराज की, मौजज़ात की, उसमें बार बार कहा गया मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम, मुबारक हो तुम। ये एक लीडर है जिसको देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसके तौर तरीके को देखकर लोगों ने उसके मानने वाले को, उसके मानने वालों को मसीही कहना शुरू कर दिया। आप लिखते जाएं, नोट बनाएं, क्योंकि जो चीज हम कलम से कॉपी पे लेके जाते हैं वो ज्यादा याद हो जाती है। अब पौलुस एक बड़ा बोल रहा है और वो कहता है अब मैं जिंदा ना रहा। ये किसी ने दूसरे ने नहीं कहा। पौलुस का एक अलग स्टाइल है। फिर वो कहता है मेरी मानद बनो, जिस तरह के मैं मसीह की मानद बनता जाता। मेरी मानद, वो क्या कहता था कि एक कामयाब पास्टर, लीडर, खादम बनने का एक तरीका वो कह रहा है मेरी मानद बनो। पौलुस ने बड़ी कलीसियाओं को तैयार किया और करता क्या था? टेंट बनाता था, किसी पर बोझ नहीं, किसी के हाथ से खाता नहीं, किसी से लेता नहीं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मैं हवाले देता रहूं वीडियो लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। वो कहता है कि अब झाड़े के दिन हैं, सर्दी आ रही है, तो फलां के घर में मेरा एक चोगा पड़ा है और वो लेते आना। लगता है कि उसका सीजन का एक ही सूट है, गर्मियों का शायद एक हो, सर्दियों का एक नजर आ रहा है। जो पैसे इकट्ठे कर रहा है चर्चेस से, वो इसराइल पहुंचा रहा है, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करना, इसराइल को माली सपोर्ट करना, इसराइल को अपनी दुआओं में याद रखना, इसराइल के बारे में अच्छे अल्फाज बोलना, बाइबल कहती है कि तुम्हारे लिए बरकत की बात है। जो कोई इसराइल को मुबारक कहेगा, खुदा उसको मुबारक कहेगा, खुदा उसको बरकत देगा। जो इसराइल के खिलाफ बोलेंगे, जो इसराइल की बात सुनना नहीं चाहते, जो इसराइल पर इल्जाम लगाते हैं, उनका हाल, भले कोई मुल्क हो, भले कोई चर्च हो, भले कोई कांग्रीगेशन हो, भले कोई डिनोमिनेशन हो, भले कोई टोली हो, टोला हो, कोई भी हो, वो तनज़ली की तरफ जाएंगे।
क्योंकि खुदा कहता है मैंने सिर्फ तुझे चुन लिया है, कौमों में से सिर्फ तुझे चुना है, तुझे मुकर्रर किया है। अब हम तो खुदा पर सवाल नहीं कर सकते कि ये तेरा क्या मामला है, तू क्यों सिर्फ उन्हें ही चुनता है, तू सिर्फ क्यों उस एक कौम को बरकत का वसीला बनाता है, ये तेरा तौर तरीका क्या है। खुदा पर कोई इल्जाम नहीं दे सकता, खुदा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यसाया की किताब में लिखा है कि बर्तन कमार के सामने सवाल नहीं कर सकता कि तू मुझे क्यों इस तरह का बना रहा है। एक तूने कनाली बना दी और एक तूने लोटा बना दिया, एक तूने हंडिया बना दी, एक तूने दौरी बना दी जिसमें जानवर पानी पीते हैं, कुत्ते पानी पीते हैं। कुछ तू बर्तन इज्जत के बना रहा है और कुछ हर वक्त गंदे नापाक, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बना रहा है। कोई भी जो बर्तन है वो खुदा के सामने जवाब नहीं दे सकता, और कोई भी जवाब मांग नहीं सकता, और कोई भी सवाल उठा नहीं सकता। वो खुदा है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो क्रिएटर है, वो बाप है। बाप के सामने सवाल नहीं, राय होती है, सवाल नहीं होता। यीशु मसीह ने एक राय दी, बाप अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल जाए, कि मैं आज गतसमनी में इनकाउंटर ना किया जाऊं। मैं तो चाहता हूं कि कलवरी तक पहुंचूं, मैं तो चाहता हूं सलीब पर चढ़ जाऊं, मैं तो चाहता हूं कफारे का काम पूरा करूं। लेकिन अगर तू ये चाहता है तो मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। पालूस कहता है जरूर है कि मसीह मुझ में नजर आए। वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में फिक्र करता हूं, जागता रहता हूं, क्योंकि मुझे हिसाब देना पड़ेगा। और काम क्या कर रहा है कि मसीह बयान किया जा रहा है, बार बार मसीह को दिखाया जाता है। कहता है मसीह तुम्हारे अंदर सूरत पकड़ ले। और काम क्या कर रहा है? टेंट बना रहा है, मजदूरी कर रहा है। वो टेंट बना रहा है और टेंट बनाते हुए इतना डीप चला जाता है, और फिर खुदा उसके ज़हन को खोल देता है और वो कलीसियाओं को कहता है जो काम करो ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो। दिल लगाकर काम करो, काम चोर ना बनो। दुआ करो तो इस तरह हो जाए कि पता ही ना चले कि अब कहां पे हो। ऐसे लगे जैसे कि सामने उसका तख्त है और आबद इबादत कर रहा है। दुआ करने वाला बस भूल गया कि दुनिया कहां पे है। ये नहीं कि उसके ख्याल इधर उधर घूम रहे हैं, भटकता फिर रहा है, कभी बाजार में, कभी मजार पे, कभी दरबार पे, कभी किसी के घर, कभी किसी की शक्ल देख रहा है, किसी का तसव्वुर दिमाग में है, कौन सोना है, कौन बदसूरत है, कौन काम वाला है, कौन निकम्मा है। वो कहता है मैं अपने ख्यालों को काबू करता हूं और कंट्रोल करता हूं और बांधता हूं और उनको स्लीव के नीचे लेके आता हूं। उसको चंदे की फिक्र नहीं है। वो टेंट बना रहा है, उसके ज़हन में है कि ये मैं टेंट अपने खुदावंद के लिए बना रहा हूं। उसको बार बार वो ख्याल आता होगा, सोचता होगा कि मेरे खुदावंद ने, मेरे निजात दहिंदा ने, यस्सु नासरी ने मुझे कहा था, ऐ साउल
ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। लोमड़ियों के भट्ट, हवा के परिंदों के लिए घोंसले, और मेरे लिए तो सर रखने के लिए भी जगह नहीं। तू मुझे क्यों सताता है, क्यों दुख देता है। जब साउल को समझ आ गई, पता चल गया कि मैं यस्सु को सताने वाला हूं, मैं हूं उस बेघर को दुख देने वाला, तो जब वो टेंट बना रहा है, था वो बिन्यामीन कबीले का, बिन्यामीनी था, इल्म के लिहाज से वो फरीसी था, और फरीसी जो हैं वो बड़े आलम थे और होते थे आज भी। वो रवायतों को जानते हैं, मिशना को जानते हैं, तालमुद को जानते हैं, तारगुम को जानते हैं, जुबली को जानते हैं। वो तमाम चीजों को जानते हैं, लेकिन वो रोता है, रो रो कर उसकी आंखें धुंधला गईं, उसको सही दिखाई नहीं देता था, और वो टेंट बना रहा है। कलीसिया का एक टेंट है, एक वो रोटी रोजी कमाने के लिए टेंट बना रहा है, और कहता है जो काम करो जी से करो। वो चंदे की फिक्र नहीं कर रहा। कहता है एक जगह पे कि मैं तुम पर बोझ बन सकता था, मैं तुमसे ले सकता था पैसे और तुमसे चीजें ले सकता था, लेकिन नहीं, मैं हाथ से कमाना ज्यादा बेहतर समझता, मैं टेंट बनाना ज्यादा अच्छा समझता हूं। मुझे महसूस होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये कामयाब पास्टर की खूबी है, उसका दिल खुदा के साथ लगा है, उसका दिमाग हर वक्त उसके कलाम को याद रखता है। ऐ साउल, आप अपना नाम रख सकते हैं, यहां पर कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा निजात दहिंदा मुझे कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है, क्यों तू ढोंग रचा रहा है, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कभी शिफा के तरीके से, कभी क्लासेस लेने के तरीके से, कभी तू अपने आप को आलम कहता है, कभी तू अलामा कहता है, कभी तू डॉक्टर कहता है, कभी तू पास्टर कहता है, कभी तू कुछ कहता है। तू मुझे क्यों सताता है। मेरे पास तो टेंट भी नहीं था, मेरे पास तो सर रखने की जगह भी नहीं थी, मेरे पास तो घोंसले की मिसाल भी नहीं है कोई। परिंदों को देखो, मेरे पास नहीं है घोंसला। और पौलुस कहता है खुदावंद, अब मैं डबल डबल कपड़े भी नहीं बनाऊंगा, डबल डबल घर भी नहीं बनाऊंगा, लाखों का प्रीचर भी नहीं बनूंगा, लोगों को पैसे दे देकर इकट्ठे नहीं करूंगा, यूट्यूब को, फेसबुक को पैसे देकर अपनी वीडियो बूस्ट नहीं करूंगा ताकि लोग मुझे जाने, कि लोग मुझे पता चले कि मैं बड़े सुनने वाले हैं। इतना आलम होकर भी वो कहता है जिन चीजों को मैंने मेहनत करके हासिल किया उनको मैं कूड़ा समझता हूं। और ये जो स्कूलों से भागे हुए हैं, ये सेमिनरियां बना के बैठे हुए हैं, ये प्रीचर बने हुए हैं, ये टीचर बने हुए हैं, जो झुग्गियों में रहते थे, कच्चे मकानों में रहते थे, बुरी हालत थी, आज वो महलों में हैं, और जो महलों वाले थे वो सड़कों पे आ गए, ताकि अब मैं जिंदा नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। उसको टेंट बनाते हुए ही खुशी हो रही है कि ये टेंट मैं अपने खुदावंद के लिए बना रहा हूं, और ये टेंट मैं अपने खुदावंद की कलीसिया के लिए बना रहा हूं। मैं जागता रहता हूं क्योंकि मुझे हिसाब देना पड़ेगा। सोच लें, आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब से खाली नहीं रहेंगे, बच नहीं सकते।